हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज हम चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि अबाउट द मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, particularly what developments or what changes took place in the state of Jammu and Kashmir after 1947. So far we have discussed many things about this chapter. Today our topic is about agricultural expansion and the development of irrigation projects. So towards the state building policy, uh, a lot of steps were taken to enhance the state economically, to enhance its resources or to tap its resources to make it a self-sufficient state economically. So among these steps which were taken by the newly formed government were the agricultural expansion. तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में क्या ख़ास चीज़ें हुई। इसमें the newly formed government was very keen to enhance or to increase the agricultural output of the state. So for this a number of steps were taken. Thus the government took concrete steps to improve irrigation system in the state, which was very important for agriculture, which was very important to increase the agricultural output of the state. So to overcome the problem of irrigation, the government took concrete steps to tap water resources for irrigational purposes, and for the same purpose a separate department of irrigation was established. Department of irrigation इसके लिए कायम किया गया, which was carved out of the public works department organization. As a result, irrigation was given priority during the first, second and third 5-year plans of the state, so that it could be greatly developed for the purpose of agriculture in the state. तो obviously जो irrigation facilities हैं इनको कायम किया गया ताकि किसानों को जो पानी की किल्लत है वो बहुत हद तक जो है दूर हो सके और वो खेती बाड़ी अच्छी तरह से कर सके। तो इस तरह से जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स है, लाइक लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, उनको इंट्रोड्यूस किया गया, और उस मकसद से बहुत सारे जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है वो स्टेट में लॉन्च की गई, जिनकी मदद से उन एरियाज़ तक भी पानी पहुंचाया गया जहां तक पहले ये नहीं था, या जहां तक पानी पहुंचाना पहले नामुमकिन ही था। तो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ जो कनाल इरिगेशन सिस्टम, जो कि बहुत पॉपुलर है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उसको भी और डेवलप किया गया। कनाल्स जो है इनको बिल्ड किया गया टू ब्रिंग वाटर टू द फील्ड्स बाय द गवर्नमेंट. So these steps helped a great deal to the farmers, and which helped a lot to increase the agricultural production. तो इसे क्या होगा, इन स्टेप से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, उसमें बहुत इजाफा देखने को मिला, जो कि था 82.56 लाख माउंड्स 1951-52 में था, जो कि इंक्रीज़ हुआ 166.10 लाख माउंड्स इन 1964 to 1965. So we can say double amount of agricultural production है जो इन 10-15 सालों में यहाँ स्टेट ने हासिल किया. So it was possible all due to the policies of the government toward the agricultural expansion, and especially for the development of irrigation projects. Further, other steps which were taken by the government to help the people of Jammu and Kashmir economically, that it gave greater emphasis to cooperative movement, which was started with the object of bringing entire village life into this fold. तो कोऑपरेटिव सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया
ताकि यहाँ पर बेटर या हम कहेंगे सस्ते दामों में लोगों को सीड्स अवेलेबल हो या और भी जो चीज़ें हैं वो उनको अवेलेबल हो, ख़ासकर रूरल एरियाज़ में। इनका ये मकसद था कि the objective was to bring the entire village life into this fold. Thus, it greatly dealt with the debt issues. तो जो cooperatives ने किस तरह से हेल्प किया लोगों को डेट इश्यूज, यानी जो लोग कर्जे में फंसे हुए थे उनकी मदद करना, इस तरह से जो लोग लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे उनके क्रॉप्स को फाइनेंस करना, यानी एक एग्रीकल्चरलिस्ट को जितना भी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी एग्रीकल्चर में, तो वो कोऑपरेटिव से वो पैसा ले सकता था। इट आल्सो प्रोवाइडेड लैंड्स फॉर कल्टीवेशन ऑन लीज, और जो लैंडलेस लोग थे उनको भी लैंड प्रोवाइड की गई लीज पर कल्टीवेशन के लिए। और कोऑपरेटिव सिस्टम्स एनकरेज कर रहे थे रीपेमेंट्स इन टाइम। तो इसमें सस्ते दामों हम कहेंगे ये चीज़ उनको अवेलेबल होती, यानी इंटरेस्ट रेट या तो नहीं होता था या बहुत कम होता था, ताकि लोग जो है उनमें जो इकोनॉमिक वेलबींग पैदा हुए। लेकिन ड्यू टू ऑफिशियल एपाथी हम कहेंगे ही, या ओइंग टू द मिसमैनेजमेंट एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हुकूमत ने तो ध्यान दिया था, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे वो करप्शन की वजह से या दूसरे रीज़न की वजह से इस मूवमेंट को यानी ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस तरह से ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थी, इट कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच टू रिव्यू इकॉनमी ऑफ द स्टेट। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा जो है एक हम कहेंगे बदकिस्मती रही, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी टू रिवाइव द विलेज इकॉनमीज, इट कुड नॉट डिलीवर द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो इसमें आपने पढ़ा होगा, ये शायद इकोनॉमिक्स में भी आपको ये टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो यहाँ मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी और इसके मेजर हाइलाइट्स क्या रहे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका शुक्रिया।